Welcome to GMAT Master Series, where you and I sit down together and practice some part or the other of verbal reasoning. This session is about critical reasoning practice, and we are going to focus on strengthen the argument question in this particular video. So let's go ahead and talk about strengthening the arguments then. So when you look at all of these different question types in critical reasoning, one of the questions that you would recognize as a high frequency question is strengthen the argument. So how do we go on to strengthen an argument, and what does it mean? All of this has been covered in detail in our classes, but just to give you a quick recap, what is strengthening an argument? Well, strengthening essentially means providing support, and when you provide support, you end up making something stronger. तो argument को support कैसे दे सकते हैं आप कोई ऐसी नई information ला सकते हैं that can provide support to the conclusion. आप कोई ऐसा नया फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, एग्जाम्पल, एविडेंस ला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रेमिसेस और अजम्पशन को सपोर्ट करे, या फिर आप क्रिटिकल रीजनिंग में खासतौर पे आप अगर अजम्पशन भी स्टेट कर देंगे तो इवन दैट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर argument. So you and I will work on it together, where you will go ahead and solve a question, then I will dive in, I will pitch in and discuss it with you. तो चलिए आइए. So here is your first question on the screen. I want you to pause the video right here, answer it, take your time, and once you are done, hit play and we'd go ahead and discuss it. So pause and start. Okay, so I hope you've attempted it and you're not treating it as just spectator sport. चलिए देखें. So which of the following, if true, most strengthens the argument? देखो कितना simple question stem. So now we will go to the paragraph and figure out the argument along with its components. So चलिए, let's go. So between 1980 and 2000, the sea otter population of the Aleutian Islands declined precipitously. When something declines precipitously, it means that it declines very rapidly or suddenly or very steeply. So the decline was significant and rapid. There were no signs of disease or malnutrition, so there was probably an increase in the number of otters being eaten by predators. Orcas will eat otters when seals, their normal prey, are unavailable. तो देखो इसमें बहुत सारे animals के नाम आ रहे हैं ना. So we have sea otter, we are talking about orcas, and we are talking about seal. Seal तो आपको फिर भी ध्यान ही होगा. Let's start with sea otter. Sea otters जो हैं personally मुझे बड़े cute लगते हैं. बताओ यार cute है कि नहीं है ना? इनकी बात हो रही है, इनकी. और हम बोल रहे हैं इनको कौन खाते हैं? Orcas. And you know orcas too. The other name that orcas are known by is killer whale. Remember killer whales? तो ये किलर वेल्स हैं, ये भी देखने में बड़ी सुंदर होती है, डॉल्फिन जैसी लगती है वैसे काफी हद तक. हाँ, तो इनकी बात हो रही है. तो बोल रहे हैं सी ऑटर की पॉपुलेशन काफी कम हो गई. अब देखो किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो क्यों होगी? एनिमल्स आर डाइंग, राइट? तो अब इसके चार ही फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन कम होने के. एक्चुअली तीन, चौथा मैं ऐड करूंगा अभी इसके बाद. दैट द एनिमल्स आर डाइंग बेसिकली, है ना, बहुत सारे एनिमल्स मर रहे हैं और बर्थ रेट उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही है. मरने के कारण क्या होंगे? मरने के कारण हो सकते हैं डिजीज, मैलन्यूट्रिशन या फिर अटैक. तो ये तीन कारण प्लस डिक्लाइनिंग बर्थ रेट विल एक्सप्लेन इट. अब इसमें हमें क्या बताया गया? देयर इज नो साइन ऑफ डिजीज और मैलन्यूट्रिशन. तो बीमारी हुई क्या? इनको नहीं हुई. मैलन्यूट्रिशन, खाना पूरा नहीं मिल रहा, उससे मरने लग जाए, वो भी नहीं हुआ. तो फिर एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी क्या है कि देयर वाज प्रोबेबली एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑटर्स बीइंग ईटन बाय प्रेडेटर्स. अब ये क्या बता रहे हैं? एक प्रेडेटर है ऑर्काज. हाँ, ये क्या ये ऑटर्स खाते हैं? नॉर्मली नहीं खाते, बट दे विल ईट ऑटर्स व्हेन सील्स, देयर नॉर्मल प्रे, आर अनअवेलेबल. And the Aleutian Islands seal population declined dramatically in the 1980s. Therefore, orcas were most likely the immediate cause of the otter population decline. तो यहाँ पे अगर अब हम देखें तो हमारा conclusion क्या है? The conclusion is
The cause of decline behind the otter population during this time period is orcas. क्यों? यार ऑर्काज नॉर्मली सील खाती हैं, जब सील नहीं होते तो फिर वो ऑटर्स को खाती हैं, और 1980s में सील्स नहीं थे, उनकी पॉपुलेशन में बहुत कमी आई, तो इसलिए ऑब्वियसली ऑर्काज फिर मूव कर गई होंगी ऑटर्स की तरफ, और इसलिए ऑर्काज की पॉपुलेशन हो गई डिक्लाइन। और हमें करना है इसे स्ट्रेंथन, यानी कि वी आर लुकिंग फॉर एन आंसर चॉइस दैट ब्रिंग्स इन अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द कंक्लूजन हियर. So let's dive in. A. The population of sea urchins, the main food of sea otters, has increased since the sea otter population declined. अच्छा, तो ये तो बता रहा है, ये सिर्फ ये वैलिडेट कर रहा है कि हाँ सी ऑटर की पॉपुलेशन में कमी हुई, देखो ये रहा उसका एविडेंस। बट सी ऑटर की पॉपुलेशन में कमी होने का रीजन क्या ऑर्काज थे, इससे रिलेटेड तो ये हमें कुछ भी नहीं बता रहा, राइट? एंड देयरफॉर दिस इज इररेलेवेंट फॉर अस. बी. Seals do not eat sea otters, nor do they compete with sea otters for food. ओके, तो ये बोल रहा है यार सील्स और सी ऑटर्स फूड चेन में ना आपस में कनेक्टेड नहीं है, ना तो सील्स ऑटर्स को खाते हैं और ना ही ये खाने के लिए एक दूसरे से compete करते हैं. तो अगर ये ट्रू है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि अच्छा सील्स की पॉपुलेशन में कमी हुई, ऑटर्स को वैसे भी खाते नहीं, तो उनकी पॉपुलेशन कम ज्यादा होने से ऑटर की पॉपुलेशन पे फर्क नहीं पड़ता. तो इसलिए अगर ऑटर्स की पॉपुलेशन कम हुई तो कोई और फैक्टर इन्वॉल्व होगा. बट कैन आई से दैट दिस अदर फैक्टर इज ऑर्काज? क्या इससे हमें यह पता चल रहा है कि हाँ ऑर्काज ने ही खाया? नहीं, तो इसे भी हटा सकते हैं. सी. मोस्ट ऑफ द सर्वाइविंग सी ऑटर्स लिव इन अ बे दैट इज इनएक्सेसिबल टू ऑर्काज. तो भाई एलुजन आइलैंड का कुछ एरिया ऐसा है जहां पे ऑर्काज को एक्सेस नहीं है, और हमने देखा कि ज्यादातर जो सी ऑटर्स सर्वाइव कर पाए एलुजन आइलैंड्स में वो उन्हीं एरियाज में रहते थे. तो व्हाट डज इट गो ऑन टू सपोर्ट? इट गोज ऑन टू सपोर्ट द कंक्लूजन कि ये बचे शायद इसीलिए रहे क्योंकि यहां ऑर्काज आ नहीं सकती थी, तो इनको खा नहीं पाई. बाकी जगह द एरियाज विच वर एक्सेसिबल टू ऑर्काज, दोज वर द प्लेसेस वेयर द सी ऑटर्स वेर ईटन बाय देम. So this definitely strengthens. D. The population of orcas in the Aleutian Islands has declined since the 1980s. यार ये तो वीकन करेगा, ये तो बोल रहा है कि ऑर्काज की पॉपुलेशन में भी कमी हुई. अगर ऑर्काज की पॉपुलेशन में कमी हुई तो फिर दैट मे नॉट एक्सप्लेन व्हाई द सी ऑटर पॉपुलेशन डिप्ड प्रेसिपिटसली बिकॉज ऑफ ऑर्काज. तो ये तो वीकन कर देगा, हटा दें. ई. An increase in commercial fishing near the Aleutian Islands in the 1980s caused a slight decline in the population of the fish that seals use for food. So हमें क्या पता है 1980s में slight decline हुआ in the diet of seals, which means that that could have contributed to a slight decline in the population of seals. But then ये ना तो हमें ये बता रहा है कि seals की population dramatically क्यों कम हुई, और अगर ये हो भी गई किसी कारण से तो हमें अभी भी ये पता नहीं चलेगा कि ऑर्काज ही कारण थे क्या. सो इट डज स्ट्रेंथन वेरी माइल्डली. अगर यहाँ ड्रामेटिकली की जगह अ बिट कर दे तो उसको सपोर्ट करेगा, ड्रामेटिकली को ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा. सो ऑल्दो आई नो दिस इज अ प्रेमिस गिवन एंड ई कुड हैव सपोर्टेड दिस प्रेमिस, बट देन द डिफरेंस इज स्लाइट. तो इसलिए ये भी गया. सो द बेस्ट आंसर दैट वी हैव हियर इज ऑप्शन सी. तो आराम से इसे आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ चलेंगे. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 2. वंस अगेन पॉज द वीडियो एंड देन वील गो अहेड एंड टॉक. Solved it? So let's go ahead and work on it together now. Which of the following, if true, most strongly supports the hypothesis that Codex Berinensis was produced in 1148? तो most strongly support का मतलब क्या? Most strengthens. तो चलिए आइए यहाँ पे आ जाते हैं. Codex Berinensis, देखो Codex क्या है? Codex basically means an ancient manuscript. थोड़ा और डिटेल में बोलूं तो एक पुरानी हैंड रिटन किताब.
उसे आप बोलते हैं कॉडेक्स। तो एक कोई किताब है कॉल्ड बेरिनेंसिस, अ फ्लोरेंटीन कॉपी ऑफ एन एंशियंट रोमन मेडिकल ट्रीटाइज। तो इस किताब का थीम क्या है? रोमन मेडिकल ट्रीटाइज। और ये फ्लोरेंटीन कॉपी है, यहाँ ये एडजेक्टिव है, मतलब फ्लोरेंस में मिली हुई कॉपी है ये। तो फ्लोरेंस में हमें एक कॉपी मिली बुक की। दैट कॉपी इज अनडेटेड बट कंटेन्स क्लूज टू व्हेन इट वाज प्रोड्यूस्ड। तो कब लिखा गया ये कॉडेक्स, कब, मैन्युस्क्रिप्ट है, हैंड रिटन है, कब लिखा गया हमें नहीं पता, किताब में डेट नहीं बताई गई, लेकिन किताब के अंदर कुछ क्लूज है जो बताता है कि कब लिखी गई होगी। Its first 80 pages are by a single copyist, but the remaining 20 pages are by 3 different copyists, which indicates some significant disruption. तो देखो, किसी ने ये ओरिजिनल बुक उठाई और कॉपी करना शुरू किया इसे फ्लोरेंस में। 80 पेजेस एक ही बंदे ने लिखे, उसके बाद बाकी के 20 पेजेस 3 अलग अलग लोगों ने लिखे। So one person wrote the 80 pages, then he stopped writing it, then he stopped copying it. फिर कोई दूसरा बंदा आया, he also stopped writing. तीसरा आया, stopped copying. फिर चौथे ने आकर के उसको complete किया. So that's what we know. So इससे हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं during the process of writing that book there was a significant interruption. कोई ऐसी चीज थी जिसने उन लोगों को कॉपी करने से रोका कि भाई जिसने 80 लिखे थे वही 100 पूरे करता ना, बट कोई तो रीजन रहा होगा जो उसने ही ड्रॉप्ड आउट इन बिटवीन। फिर जो नया आया पर्सन, ही ऑल्सो ड्रॉप्ड आउट इन बिटवीन, तो कोई ना कोई इंटरप्शन तो रही। अब सिंस अ लेटर इन हैंड राइटिंग आइडेंटिफाइड एज दैट ऑफ द फोर्थ कॉपीइस्ट, तो देखो लास्ट 20 पेजेस 3 डिफरेंट कॉपीस्ट ने लिखे। तो अब कॉपीइस्ट 1 रोट 80 पेजेस, कॉपीइस्ट 2 ने कोई x नंबर ऑफ पेजेस लिखे, कॉपीइस्ट 3 ने कोई y नंबर ऑफ पेजेस लिखे, कॉपीइस्ट 4 ने कोई z नंबर ऑफ पेजेस लिखे। इसमें x प्लस y प्लस z इज 20। सो x प्लस y प्लस z इज 20, ये हमें पता है। अब हमको ये मिला कि जो कॉपीइस्ट 4 है इसका लिखा हुआ एक लेटर मिला हमें। नाउ हाउ डू वी नो कि इसका लिखा हुआ लेटर है? हैंड राइटिंग मैच की हमने, और इस लेटर में क्या लिखा है? देयर वाज अ प्लेग दैट किल्ड मेनी पीपल इन फ्लोरेंस इन 1148। नाउ इट सेज दैट दिस वाज द डिसरप्टर, कि भाई एक पर्सन था उसको प्लेग हो गया, ही डाइड, उसकी जगह किसी दूसरे ने शुरू करा, देन मे बी दैट पर्सन आल्सो डाइड, फिर तीसरे ने करा डाइड, और फिर फाइनली चौथे ने जाके कंप्लीट किया। तो ये 1148 में हुआ था प्लेग। सो वी आर सेइंग कि एक मेजर इवेंट हुई दैट कुड हैव कॉज्ड दिस डिसरप्शन in 1148. Therefore Codex Berrinensis was probably produced in that year. तो हमारा यहाँ पे conclusion क्या है? Codex Berrinensis was produced in that year, where that year basically means 1148. So ये conclusion. On what basis are we saying it? We are saying that number one, 4 different authors, 4 different लोगों ने लिखा इसे, कॉपी किया इसे। 4 लोगों ने कॉपी किया तो मतलब कोई ना कोई डिसरप्शन आई, और 1148 में एक डिसरप्टर था, तो ये उसी साल में लिखा गया होगा। पता कैसे चला? 1148 का एक लेटर से। यहाँ पे अजम्पशन क्या है? द अजम्पशन इज कि यार इस इवेंट के अलावा और कोई ऐसी इवेंट नहीं हुई उस दौरान, उस दौर में, जिसकी वजह से इस तरह की डिसरप्शन की जा सके। ये इकलौती ऐसी इवेंट थी, इसलिए यही इवेंट, यही ईयर इज द राइट ईयर। चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं। ए, other than Codex Berrinensis, there are no known samples of the handwriting of the first 3 copyists. इसकी कोई खास रेलेवेंस नहीं है। अच्छा, अगर हमें बाकियों के हैंडराइटिंग भी मिल जाती तो कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस हो सकता है मिल जाता हमें डेट करने के लिए, बट वो एक्स्ट्रा एविडेंस, वुड दैट हैव अग्रीड विद दिस, वुड दैट हैव डिसअग्रीड विद इट, वो प्रोसेस हम पूरा अच्छे से नहीं बता सकते। तो उसको लेकर के आप और मैं बहुत श्योर नहीं हो पाते। तो इसलिए क्या वो यही रीजन था? वी कांट रियली से। ओके, तो एक्स्ट्रा क्लूज मिल जाते मगर नॉट नेसेसरली दिस। देन बी, अकॉर्डिंग टू द अकाउंट बाय द फोर्थ कॉपीज द प्लेग वेंट ऑन फॉर 10 months. Okay, so we already know that the plague went on to kill many people, है ना? अब उसने he killed all these people in 1 month, or did it take 10 months?
उससे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं ना, दिस मेरली, तो ये इररेलेवेंट है, मतलब कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दे रहा है, इस ड्यूरेशन से कुछ निकल के नहीं आ रहा. सी, a scribe would be able to copy a page of text the size and style of Codex Berrinensis in a day. तो scribe, a person who writes, a person who copies. तो ये बता रहा है एक दिन में एक पेज कॉपी हो जाता. हाँ, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा, अगर ये लोग भी जिन्होंने इसको लिखा इसी जितने कॉम्पिटेंट थे, तो ये 20 पेजेस लिखने में 20 दिन लगे होंगे, और 20 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो लोग रिप्लेस करने पड़े. हाँ, तो क्या वो डिसरप्शन ये प्लेग ही था, या क्या वो डिसरप्शन कुछ और था? So all we know is that if this is true, then this entire book could be copied in 100 days. But was the disruption caused by this plague? वो पता नहीं चल रहा हमें इससे. D, there was only one outbreak of plague in Florence in the 1100s. Now if this is true, तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, हमारे अजम्पशन को सपोर्ट कर रहा है, स्टेट कर रहा है कि यार इसके अलावा और कोई डिजीज वाला डिसरप्टर तो नहीं था. So if this was the only disruptor, तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ, this must have been the reason. So अगर मान लो मल्टीपल आउटब्रेक्स होते इस 1100s में, भाई लेट अस से 1105 में एक आउटब्रेक हो गया, फिर 1148 में हो गया, फिर 1178 में हो गया, तो फिर इनमें से कोई भी डिसरप्ट कर सकता था ना इस प्रोसेस को. 1105 वाले की वजह से हो सकता था फिर डिसरप्शन, राइट? तो चूंकि डी हमें बताता है कि ये नहीं हुआ, तो फिर ये ही रहा होगा. तो उस सेंस में इट डज गो ऑन टू प्रोवाइड सम सपोर्ट, राइट? तो व्हेन वी नो कि नहीं थे, तो डेफिनेटली स्ट्रेंथन्स. अगर हम सोचो, अगर हम ले लें कि नहीं थे, देयर वर मल्टीपल आउटब्रेक्स, तो ये वीकन हो रहा है ना, तो इसका ऑपोजिट विल गो ऑन टू देन स्ट्रेंथन इट. ई, द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ कॉडेक्स बेरिनेंसिस प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल स्क्राइब बिकम्स स्मॉलर विद ईच सक्सेसिव चेंज ऑफ कॉपीइस्ट. ओके, तो हम बेसिकली बोल रहे हैं कि यार ये x की जो वैल्यू है वो y से ज्यादा है, y की वैल्यू z से ज्यादा है. बट इससे ये कैसे पता चल रहा है कि 1148 में प्रोड्यूस हुआ था? हाँ, इट इज रिलेटेड विद कॉपीइस्ट आउटपुट. हर एक बंदा पिछले से कम प्रोडक्टिव है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये कब किया गया था, इसे प्रोड्यूस किया कब गया था. इट स्टिल गोज अहेड एंड स्टेज साइलेंट अबाउट दैट. तो ये नहीं होना चाहिए हमारा, राइट? तो एज अ रिजल्ट द बेस्ट आंसर इज डी. तो इसी को आंसर चूज करके वी कैन देन मूव ऑन फ्रॉम देयर. चलिए, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट्स योर आंसर? So pause the video, solve it, then come back. शुरू करें? आइए. So which of the following is a consideration in favor of the companies implementing its plan to develop the prototype? तो कंपनी, यहाँ कोई कंपनी है जो एक प्रोटोटाइप डेवलप कर रही है. इनमें से कोई चीज अगर ट्रू होगी तो वो उस प्रोटोटाइप बिल्डिंग के प्रोसेस के लिए फेवरेबल है, यानी कि एनकरेज कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है उनके प्लान को. तो चलिए देखें प्लान क्या है. अ कंपनी प्लान्स टू डेवलप अ प्रोटोटाइप वीडिंग मशीन दैट यूजेस कटिंग ब्लेड्स विद ऑप्टिकल सेंसर्स एंड माइक्रोप्रोसेसर्स दैट डिस्टिंग्विश वीड्स फ्रॉम क्रॉप प्लांट्स बाय डिफरेंसेस इन शेड ऑफ कलर. तो आपको पता है व्हेन वी ग्रो प्लांट्स, तो साथ में वीड्स भी उगते हैं, उन वीड्स को हटाते रहना पड़ता है सो दैट दे डू नॉट टेक द नरिशमेंट, न्यूट्रिशन अवे फ्रॉम योर क्रॉप्स. आपकी यील्ड कम कर देंगे वो. तो अब ये बोल रहे हैं कि यार हमने एक मशीन बनाई, वो मशीन ना देख के पहचान जाती है कि ये क्रॉप प्लांट है कि वीड है, और वो देखने का बेसिस क्या है, उसका कलर है ना. क्रॉप प्लांट्स भी जनरली ग्रीन होते हैं, वीड्स भी ग्रीन होते हैं, बट उनमें कहीं ना कहीं कलर का डिफरेंस है, ग्रीन में शेड का डिफरेंस है, उससे पहचान जाते हैं ये. So the inventor of the machine claims that it will reduce labor costs by virtually eliminating the need for manual weeding. तो अब यहां पे हमें बताया कि इनमें से कौन सी चीज हमें बताया कि प्रोटोटाइप बनाना फेवरेबल रहेगा. तो एक प्रोडक्ट बना दिया जाए, देखा जाए एक
वर्किंग मॉडल बनाया जाए, फिर देखा जाए. So let's start with A. There is a considerable degree of variation in shade of color between weeds of different species. यार वो weeds of different species में variation है नहीं है, वो irrelevant है. मतलब how does it tell us कि हाँ ये बनाना ठीक रहेगा? ये तो इनफैक्ट ये बताएगा कि अगर वेरिएशन आए तो हो सकता है कि आप विजुअली ना पहचान पाए. उस केस में द मशीन मे प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट. इट मे फेल टू रिकॉग्नाइज अ वीड. है ना कि स्टैंडर्ड कलर नहीं होता है वीड्स का. हाँ, उनमें स्टैंडर्ड शेड ऑफ ग्रीन नहीं फॉलो करते वीड्स. तो दिस कैन मेक द जॉब ऑफ द मशीन टफर. इट डेफिनेटली डज नॉट सपोर्ट इट. B, the shade of color of some plants tend to change appreciably over the course of their growing season. फिर से वही, अगर आप शेड के बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं और प्लांट अपनी शेड चेंज करता रह सकता है तो एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई. सो वीकन हो जाएगा. C, when crops are weeded manually, overall size and leaf shape are taken into account in distinguishing crop plants from weeds. तो देखो मशीन बोल रही है हम विजुअली करेंगे, कलर देख के, शेड पे फोकस है. लेकिन जो लोग मैनुअली करते हैं दे डू नॉट लुक एट द शेड. व्हाट डू दे गो बाय? दे गो बाय द साइज एंड द शेप ऑफ द लीफ. What does it mean? So why are people not using shade of color? There can be two possible reasons here. Reason number one is that the shade does not give you right result. Or reason number two could be that people are not able to distinguish shades of green. तो अगर लोग ये दो चीजें इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते शेड ऑफ ग्रीन, जबकि डिफरेंस होता है एक्चुअली उनमें, शेड ऑफ ग्रीन का भी वीड और क्रॉप प्लांट में, तो उस केस में ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन होगा. बट इफ पीपल यूज दिस बिकॉज द शेड ऑफ ग्रीन इज इररेलेवेंट, तो उस केस में वीकन हो जाएगा. सो दिस मे स्ट्रेंथन, दिस में वीकन. वील हैव टू अज्यूम समथिंग. तो इसे रनिंग में रखते हैं, कोई इससे बेटर मिला तो देखेंगे. डी, selection and genetic manipulation allow plants of virtually any species to be economically bred to have a distinctive shade of color without altering their other characteristics. तो ये हमें क्या बताता है? It is possible for us to determine the shade of the color of a plant. हम चाहें तो प्लांट को एक डिफरेंट शेड दे सकते हैं. और तो और ये जो प्रोसेस है it applies to all the species. Moreover, it is economical and it does not alter any other characteristics. So if this is true, if this is possible, तो फिर तो ये मशीन बना सकते हैं. Because then we can train it, we can tell it कि भाई ये जो शेड है, वहाँ पे जो वीड्स हैं हम उनके शेड से डिफरेंट शेड अपने क्रॉप प्लांट को दे देंगे और मशीन को बोल देंगे ये वाला शेड ऑफ ग्रीन नहीं कट करना आपको, नहीं वीड आउट करना, बाकियों को करना है. सो दिस इफ ट्रू डज मेक इट फीजिबल. तो ये हो सकता है. सी से बेटर है तो सी को रूल आउट कर देते हैं. ई, farm laborers who are responsible for the manual weeding of crops carry out other agricultural duties at times in the growing season when extensive weeding is not necessary. तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि प्रोटोटाइप बनाएं या ना बनाएं? तो हम बोल रहे हैं जो फार्म लेबर वीड आउट करते हैं, जब वीडिंग की जरूरत नहीं होती वो खेत में कोई और काम कर लेते हैं उस समय, तो मशीन से कोई लेना देना नहीं ना, तो हटा दो. सो दैट बेसिकली अलाउज यू टू चूज डी एज योर आंसर. विद दैट let's go ahead and pick up our next question. So question number 4 on your screen. Pause the video and then we'll talk. Ready? Let's go. So which of the following, if true, taken together with the information above, best supports the conclusion that the cost of television satellites will continue to increase? Now this is a strengthen the argument question with a difference. How? This is a question where the conclusion is not given to you in the paragraph. The conclusion is given in the question stem. So the conclusion here is the cost of television satellites will continue to increase. टीवी सेट्स की कॉस्ट निरंतर लगातार बढ़ती जाएगी. तो यहां कंक्लूजन ढूंढना ही नहीं है, अब सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़नी है, उसके बाद देखना है इसको क्या क्या चीज, कौन सा ऑप्शन सपोर्ट
करेगा. चलिए लेट्स स्टार्ट. So recent spate of launching and operating mishaps with television satellites led to a corresponding surge in claims against companies underwriting satellite insurance. Okay, तो भाई सैटेलाइट टीवी सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए. हाँ, स्पेट ऑफ लॉन्चिंग एंड और उसमें स्पेट ऑफ लॉन्चिंग एंड ऑपरेटिंग मिसहैप्स हुए. स्पेट मतलब काफी कई बार ऐसा हो गया कि लॉन्च के टाइम पे या फिर पहुंच गया ऊपर, वहां पे जाके ऑपरेशंस के टाइम पे कोई एक्सीडेंट हुआ. सो जिसके वजह से आपका सैटेलाइट अब काम नहीं कर रहा. ओके, अब जब सैटेलाइट काम नहीं कर रहा तो आपने फिर गए आप इंश्योरेंस कंपनीज के पास और बोला कि भाई हम इंश्योरेंस करवाते हैं ना, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो आई विल गो टू द इंश्योरेंस कंपनी. ऐसी सैटेलाइट है, एक्सीडेंट हो गया तो आई विल गो टू द इंश्योरेंस कंपनी, इनसे भाई पैसा दो, इंश्योरेंस का क्लेम कर रहा हूं मैं. सो एज अ रिजल्ट इंश्योरेंस प्रीमियम्स शॉट अप. तो व्हेनेवर एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स एन ऑब्जेक्ट, तो उसके अगेंस्ट वो क्या करती है, वो कुछ पैसा चार्ज करती है. ये पैसा किस बेसिस पे चार्ज किया जाता है, ये ना प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे होता है ना. एक्चुअरीज होते हैं जो दे डिटरमिन द रिस्क. सो इंश्योरेंस को अगर बहुत सिंपल तरीके से देखें तो ये क्या है, इट इज अ शेयर्ड पूल that helps us mitigate the risk. What do we mean by that? Let us say there are 100 people who bought a car. Now, statistically, we know that one of them will meet with an accident this year. So, you are one of those 100, I am one of those 100, there are 98 people more. तो अगले एक साल में क्या तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, क्या मेरा एक्सीडेंट होगा, कह नहीं सकते. क्या बाकी 98 का होगा, वो तो एग्जैक्ट एक बंदे को उठाए तो ये नहीं बोल सकते कि इसी का होगा, बट हमें ये पता है कि किसी एक का होगा इस साल. हाँ, और जनरली हमने देखा कि जब एक्सीडेंट होता है तो यार 50,000 का खर्चा आता है. तो हम 100 लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार देखो किसी एक का होगा, मेरा भी हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है, 50,000 का खर्चा आएगा, 100 लोग हैं, क्यों ना हम 100 लोग 500 रुपए डाल के एक 50,000 का पूल बना लें. जिसका भी एक्सीडेंट होगा वो ये 50,000 यूज कर लेगा, तो सबका रिस्क मिनिमाइज हो गया ना, है ना. आपको 500 रुपए देने पड़े बट एक पोटेंशियल 50,000 का खर्चा आपका बच गया. लेकिन अभी सोचो अगर वो एक्सीडेंट एक की जगह 2 हो गए तो 1 लाख का खर्चा आया, तो हमें अब 500 देने से काम नहीं बढ़ेगा, अब हमें 1000 पूल में डालने पड़ेंगे. ठीक ऐसे ही अगर सडनली काफी सारे सैटेलाइट्स का एक्सीडेंट हो गया पहले से ज्यादा, तो जो इंश्योरेंस कंपनी के कैलकुलेशंस थे, इतने का एक्सीडेंट होता है इतना पैसा देना पड़ता है, वो कैलकुलेशंस गड़बड़ हो गए. अब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ गए तो वो फिर वो पूल में जो पैसा लेना है हर बंदे से वो भी बढ़ेगा ऑब्वियसली. तो उस पूल में जो आप पैसा डालते हैं दैट्स काइंड ऑफ योर इंश्योरेंस प्रीमियम. सो वो बढ़ गया. So making satellites more expensive to launch and operate. This in turn has added to the pressure to squeeze more performance out of currently operating satellites. तो और पहले से ही महंगे थे, अब और ज़्यादा महंगे हो गए उनको लॉन्च और ऑपरेट करना. तो लोग कोशिश कर रहे हैं यार इसी सैटेलाइट से जितना ज़्यादा काम ले सकते हैं ले लें, ताकि कहीं ना कहीं हमारे कॉस्ट एफिशिएंसी, हमारा जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे, खर्चा जो है वो कम आए. तो अब ऑथर ये बोल रहा है कि अगर ये इन्होंने किया तो द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन सैटेलाइट्स विल कंटिन्यू टू इंक्रीज. क्यों, कैसे, देखते हैं. चलिए आइए. ए, सिंस द रिस्क टू इंश्योरेंस ऑफ सैटेलाइट्स इज स्प्रेड ओवर रिलेटिवली फ्यू यूनिट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर नेसेसरीली वेरी हाई. ये बहुत टेम्पटिंग है. इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि कॉस्ट्स विल रिमेन हाई. इससे हमें ये कैसे पता चलेगा कि द कॉस्ट्स विल कंटिन्यू टू इंक्रीज. इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर हाई तो कॉस्ट विल रिमेन हाई. वो और ज्यादा बढ़ेंगे कैसे, ये नहीं पता चलता हमें इसे. बी, when satellites reach orbit and then fail, the causes of failure are generally impossible to pinpoint with confidence. तो इसमें इंप्लीकेशन क्या है कि अगर आप कॉज नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप अगले सैटेलाइट में उसको फिक्स करने की भी कोई अगले लॉन्च में, अगले ऑपरेशन में फिक्स करने की कोई गारंटी नहीं ला पाएंगे. विच मीन्स दैट द सैटेलाइट्स कैन फेल इवन इन फ्यूचर, बट देन वो तो अभी भी फेल हो रहे हैं. तो कॉस्ट तब बढ़ेगी जब फेलियर रेट अभी से ज्यादा हो जाए. तो बी से कंक्लूसिवली हम ये नहीं कह सकते कि फेलियर रेट आज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. हम बी से सिर्फ ये बोल सकते हैं कि यार कम नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि हम फेलियर रेट को कम कर पाए. विच मीन्स दैट इट विल रिमेन वेयर इट इज, एंड इफ इट रिमेन्स वेयर इट इज द कॉस्ट विल ऑल्सो रिमेन वेयर इट इज. सी,
the greater the performance demands placed on satellites, the more frequently those satellites break down. Oh, सैटेलाइट से जितना ज्यादा काम करवाओगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल हो. और ये देखो लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, वी आर स्क्वीजिंग मोर परफॉर्मेंस आउट ऑफ करंटली ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स. तो हम इनसे ज्यादा काम करवा रहे हैं. अगर इनसे ज्यादा काम करवाएंगे तो क्या होगा, फेलियर रेट और बढ़ेगा. फिर आप बचे हुए से ज्यादा और ज्यादा काम करवाओगे तो फेलियर रेट और बढ़ जाएगा. तो फेलियर का नंबर आपका बढ़ता जाएगा. और अगर फेलियर का नंबर बढ़ता जाएगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा. और इंश्योरेंस प्रीमियम अगर बढ़ता जाएगा तो आपके कॉस्ट्स भी बढ़ते जाएंगे. सो सी डेफिनेटली गोज ऑन टू सपोर्ट हाउ एंड व्हाई द कॉस्ट्स विल कंटिन्यू टू इंक्रीज. तो अभी तक तो यही बेस्ट है. ए और बी को रूल आउट ही कर देते हैं. डी, most satellites are produced in such small numbers that no economies of scale can be realized. So if this is true, it tells us that they will remain expensive. But why will their costs continue to increase? It merely says that you cannot decrease them. It does not prove that they will continue to increase. E, since many satellites are built by unwieldy international consortia, inefficiencies are inevitable. तो ये बताता है यार कि बहुत ग्रुप, एक लार्ज ग्रुप है ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो मिलकर के सैटेलाइट बनाते हैं. उस लार्ज ग्रुप में बहुत ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता. इस वजह से वो प्रोसेस जो है ना वो इनएफिशिएंट है. इनएफिशिएंसीज का मतलब कॉस्ट ओवररन रहते हैं, है ना. आप पैसा अच्छे से बचा नहीं सकते उसमें. तो ये वंस अगेन दिस टेल्स यू कि इसकी वजह से कॉस्ट्स विल रिमेन हाई, बट व्हाई विल दे कंटिन्यू टू इंक्रीज. नया क्या हो रहा है जिससे बढ़े, वो ये भी नहीं बताता. तो आप इसे भी रूल आउट कर सकते हैं. सो द ओनली ऑप्शन दैट टॉक्स अबाउट व्हाई दे विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इज सी. तो इसलिए सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा. देन लेट्स गो अहेड एंड लुक एट आवर क्वेश्चन नंबर 5. गो अहेड, पॉज द वीडियो राइट हियर, आंसर इट एंड देन कम बैक. रेडी? चलिए आइए देखें. Which of the following if true most strengthens the argument given? तो चलिए argument चेक करते हैं पहले. Budget constraints have made police officials consider reassigning a considerable number of officers from traffic enforcement to work on higher priority serious crimes. तो देखो, ideally आप चाहेंगे कि आप सारे crimes को address करें, लेकिन आपके पास है budget constraints, तो आप number of police officials बढ़ा नहीं सकते. हाँ, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं कि आपने कई लोगों को ट्रैफिक एनफोर्समेंट में लगाया हुआ है कि तुम जाके ट्रैफिक संभालो. अब आप बोल रहे हैं यार यहां से हम कुछ लोगों को कम करके उनको रीअसाइन करेंगे और बोलेंगे कि यार ये जो सीरियस क्राइम्स हो रहे हैं ना उनकी तरफ जाओ. सो द अजम्पशन इज ट्रैफिक वाले क्राइम्स आर नॉट दैट सीरियस. तो जो ज्यादा सीरियस क्राइम है, कहीं थेफ्ट हो गई, रॉबरी हो गई, मर्डर हो गया, आर्सन हो गया, वहां जाके संभालो, उनको रोको. तो the author now says reducing traffic enforcement for this reason would be counterproductive. However, when something is counterproductive तो मतलब it gives you the opposite result. तो ये क्या चाहते थे, यहां से हटा के सीरियस क्राइम्स में डालेंगे तो सीरियस क्राइम्स का नंबर कम होगा. we'll be able to tackle these more effectively. when the author says कि ये करना will be counterproductive तो मतलब you will not be able to reduce the number of crimes, they will in fact go up. कैसे? In light of the tendency of criminals to use cars when engaged in the commission of serious crimes. कि भाई जो सीरियस क्राइम करते हैं ना वो जनरली कार ही तो यूज करते हैं. हाँ, so an officer stopping a car for a traffic violation can make a search that turns up evidence of serious crime. तो आपके ट्रैफिक वायलेशन से सीरियस क्राइम वाले क्रिमिनल पकड़े जा रहे थे. तो यहाँ पे अजम्पशन क्या है, सीरियस क्राइम वाले क्रिमिनल्स जनरली ट्रैफिक वायलेशंस करते हैं, राइट? तो ये आपका आर्ग्यूमेंट, राइट, कि अब आप यहां से बंदे हटाएंगे ना तो एक क्राइम तो जो हुआ सो हुआ, उसके ऊपर से आप पहले उनको पकड़ पाते थे ट्रैफिक वायलेशंस की वजह से, उनकी अब पकड़ भी नहीं पाएंगे. हाँ, तो इट कैन ओनली मेक देम बोल्डर. तो लेट्स स्टार्ट विद ए. An officer who stops a car containing evidence of the commission of a serious crime risks a violent confrontation even if the vehicle was stopped only for a traffic violation. ये तो बताता है कि अगर आप रोकते हैं तो एक और सीरियस क्राइम कमिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. तो उस केस में काउंटर प्रोडक्टिव थोड़ी हुआ, उस केस में तो इनफैक्ट सीरियस क्राइम्स का नंबर कम होगा, बढ़ेगा नहीं. सो हटा दो. When the public becomes aware that traffic enforcement has lessened, it typically becomes lax in obeying traffic rules.
ओके, तो ये बोलती है ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो किए जाएंगे, मगर वो सीरियस क्राइम वाला नंबर, उससे तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा. सी, those willing to break the law to commit serious crimes are often in committing such crimes unwilling to observe what they regard as the lesser constraints of traffic law. अच्छा, सी जो है ये क्या बोल रहा है कि यार अगर किसी बंदे ने रॉबरी करी तो उसके मन में क्या होता है कि मैं ऑलरेडी एक बड़ा क्राइम कर ही चुका हूं, अब वो कर ही चुका हूं तो फिर छोटे क्राइम को, छोटे लॉज को इग्नोर करना शुरू कर देता है वो. तो ट्रैफिक लॉज और छोटे मोटे लॉज, ही स्टार्ट्स ब्रेकिंग देम. So this supports our assumption that people who engage in a serious crime are likely to violate traffic laws, and if you have police checking for traffic violations, you can actually capture those. तो ये strengthen करता है. D, the offenders committing serious crimes who would be caught because of traffic violations are not the same group of individuals as those who would be caught in the if the arresting officers were reassigned from traffic enforcement. Okay. कुछ लोगों ने एक सीरियस क्राइम किया और वो पकड़े गए ट्रैफिक वायलेशंस की वजह से. ये दे आर नॉट द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एज दोज हु वुड बी कॉट इफ द अरेस्टिंग ऑफिसर्स वर रीअसाइन्ड फ्रॉम ट्रैफिक एनफोर्समेंट. तो ये बोल रहा है कि अभी भी कुछ सीरियस क्राइम वाले लोग ट्रैफिक वायलेशंस की वजह से पकड़े जाते हैं, और अगर आपने ट्रैफिक असाइनमेंट से हटा दिए पुलिस वाले तो एक डिफरेंट सेट ऑफ लोग पकड़े जाएंगे. तो लोग तो पकड़े ही जा रहे हैं, तो ये तो इनफैक्ट वीकन कर देगा. हम तो चाह रहे थे कि रीअसाइन ना किया जाए, हम ये बोल रहे हैं रीअसाइन कर भी दोगे तो पकड़े जाएंगे, एक डिफरेंट सेट ऑफ लोग, डिफरेंट सेट ऑफ क्रिमिनल पकड़े जाएंगे. तो कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल रहा, बट इसकी इंटरप्रिटेशन वाज ट्रिकी. ई, the great majority of persons who are stopped by officers for traffic violations are not guilty of any serious crimes. तो ये बता रहा है कि यार ज्यादातर लोग जिनको आप पकड़ते हैं वो गिल्टी होते नहीं है सीरियस क्राइम के, मतलब थोड़े बहुत लोग ही होते हैं. तो अगर आप हटा भी देंगे तो ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, विच वीकन्स द आर्ग्यूमेंट. तो आपके पास स्ट्रेंथनिंग क्या कर रहा है, सिर्फ ऑप्शन सी, तो उसी को आप एज एन आंसर मार्क करेंगे देन. So that's our answer. So these are the questions that I've got for you today. If you want to reach out to me, here's a group that you can use to reach out. It's a Telegram group. So if you have a Telegram app installed on your phone, you can scan the QR code and be part of the group, or you can look for it on Telegram using this particular name. It's a public group, so you'd reach there. So before I sign out for today, here is something that I want to leave you with. Do not fear the struggle. I know there are people out there who have issues with critical reasoning. उनको लगता है यार हो नहीं रहा, गलतियां हो रही हैं, बट देन ये जो गलतियां हैं, ये गलतियां ही हमें बेहतर बना रही हैं. ये गलतियां ही आपको इन क्वेश्चंस में एक्यूरेसी ला करके देंगी. सो एम्ब्रेस दोस, गो अहेड एंड गिव योर बेस्ट. सो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वन. ऑलराइट देन, टेक केयर एंड हैव फन.